Hi everyone, good morning. After ending the first chapter, that is known as the mole concept, or we can say it's some basic concepts of chemistry. The next chapter we have to see here is structure of atom. So, before that, can you recall all these terms here? Some questions are there written on the whiteboard. So, what is the smallest unit of matter? Can you tell me? Yes, क्या होता है smallest unit of matter? Yes, it is known as an atom. You know that matter is composed of very tiny, indivisible particles, and they are nothing but known as atoms. Okay? You know, for the first time, the Indian saint Maharshi Kanad, who was nothing but the Indian saint, a philosopher, Indian philosopher, he believed that actually he termed the Parmanu in the sense, it's a Sanskrit word Parmanu, nothing but Anu. In Marathi, they are also known as Anu. So, Maharshi Kanad, for the first time, used this term known as Parmanu. At the same time, certain Western philosophers like Plato, then Democritus, then Aristotle, as well as Euclides. All these philosophers, they also believe that the atom is nothing but, yes, it is indivisible. Okay, आपको पता होगा इस चैप्टर में, मतलब चैप्टर था हमारा मोल कंसेप्ट, इसमें हमने देखा था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. सो यू नो दैट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स आपको याद होंगे. मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल, टाइनी, indivisible particles, and they are nothing but known as atom. Atoms of the same element, they are similar in all respects. Atoms of different elements are different in all respects. Yes, whenever a compound is formed, it is always formed by the combination of whole number of atoms. Yes, whenever a chemical reaction takes place, there is nothing but chemical rearrangement takes place. I mean, there is a reorganization of the atoms within the molecule. तो ये सब हमने देखा था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में. ओके, सो till the century we can say it was believed that atom is nothing but indivisible. Atom is nothing but indivisible. But at the end of the 19th century, so at the end of the 19th century, it was, you know, on the basis of some experiments, it was proved that atom is no further indivisible, rather it has sum of the particles, and these particles are nothing but known as subatomic particles. They are known as subatomic particles. और ये जो पार्टिकल यहां पे होते हैं, ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं. ये आपने तो सीखा होगा. इसके अलावा एटम में होता है न्यूक्लियस. फिलहाल ये आपको पता होगा बेसिक्स. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर? सो इट्स नथिंग बट एटम. आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कहा था, यस, कि सपोज वी हैव टेकन द वन क्रिस्टल ऑफ शुगर हैविंग फॉर्मूला C12H22 and O11. ये है एक शुगर का, समझो, दिस नथिंग बट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द शुगर. यू नो दैट, समझो, मतलब वो है ही
अभी समझना ये है हमको कि अगर हमने एक क्रिस्टल लिया और उस क्रिस्टल को अगर हमने डिवाइड किया स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में, तो फाइनली आपको एक ऐसा पार्टिकल मिलेगा जिसको डिवाइड करना हमारे लिए हो जाएगा मुश्किल. So that very small particle of that substance is nothing but known as molecule. तो वो जो रहेगा छोटा सा वो particle, it is nothing but the molecule, and that molecule which is the smallest part of that substance or compound, it has certain number of atoms. I told you कि उस molecule में 12 कार्बन के atoms होंगे, 22 होंगे हाइड्रोजन के एटम्स और 11 होंगे ऑक्सीजन के एटम्स. So by this we can get the idea what is meant by atom, what is meant by molecule. So ये है हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर. So next, what is the difference between molecules of an element and those of a compound? So you know that अगर आप बात करोगे कंपाउंड का जो होता है स्मॉलेस्ट पार्ट, it is nothing but known as molecule, and in case of an element we can term it as atom. Then does an atom have any internal structure or is it indivisible? Can you tell me? Now see, अभी हमने यहाँ पे जो डिस्कस किया है हर एक बात को, तो इसमें आपको समझ में आया होगा कि atom is no more now indivisible. Actually it has इंटरनल स्ट्रक्चर. आपको याद होगा इसी भी एटम में क्या होता है सेंटर में न्यूक्लियस, देन इट हैज डिफरेंट शेल्स. दिस इज द न्यूक्लियस सपोज, और ये है फर्स्ट शेल, सपोज द सेकेंड शेल हियर, and this is the third shell. Nucleus is nothing but present at the center, okay, which include protons and neutrons. ये आपको पता होगा protons and neutrons, they are present in the nucleus. That's why they are also known as nucleons. बिकॉज वो कहां पे रहते हैं, वो रहते हैं न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के सेंटर में रहते हैं, इसलिए दे आर आल्सो नोन एज अ न्यूक्लियॉन्स. जस्ट लाइक यू नो दैट आडगावकर, बिकॉज दे आर फ्रॉम आडगाव. मतलब दिस इज जस्ट एग्जांपल आई एम गिविंग यू. सो यू कैन टेक एनी एग्जांपल लाइक दैट. न्यूक्लियस जो यहाँ पे होता है इसमें होते हैं प्रेजेंट पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन. सो दैट्स व्हाई they are known as nucleons. Now protons and neutrons, they are present in the nucleus, and around this nucleus different shells are present. Shells, these are nothing but known as shells or orbits. ये आपको पता होगा शायद, या फिर नहीं भी पता हो तो कोई बात नहीं. अभी हम इस चैप्टर में जानेंगे डिटेल में क्या होता है इनसाइड द एटम इन डिटेल्स. सो शेल्स और ऑर्बिट्स, इनको हम यहाँ पे बोलेंगे. और ये दिख रहे हैं आपको डिफरेंट शेल. ये है शेल नंबर 1, ये है शेल नंबर 2, ये है शेल नंबर 3, लाइक दिस. इस तरीके से these electrons are revolving in the nucleus in the circular. These electrons are revolving around the nucleus in the circular parts, and these circular parts are nothing but known as orbits or shells. Okay. Now the next question is, which particle was identified by J.J. Thomson in cathode ray tube experiment? कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट के बारे में क्या आपको कुछ आइडिया है? नहीं है? सब जानते हैं क्या किया था एक्चुअली J.J. थॉमसन ने कैथोड रे ट्यूब के एक्सपेरिमेंट पे. पहले मैं चाहूंगा ये थोड़ा सा आप नोट डाउन कर लीजिएगा. सम आइडिया यू विल गेट इट, राइट? Now look at this here. Let's see now
how electrons were discovered. It's a diagram for that, and this diagram is diagram for emission of cathode rays. Now see, at the end of the 19th century, J.J. Thomson, then Plucker, as well as P-L-U-C-K-E-R, Plucker, and then Crookes. These three scientists, they were working on, they were doing some experiments on the thing that whether electricity can be passed through the gases or not. तो वो लोग ट्राई कर रहे थे कि गैसेस में से इलेक्ट्रिक करंट क्या पास हो सकता है. सो फॉर दैट दे कैरिड सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स. और जे थॉमसन को ये पता चला उसमें कि इफ द गैसेस हैव अप्लाइड अ वेरी लो प्रेशर and a very high voltage, then electric current can be passed from the gases. So these things are required to pass electric current from the gases. Number one, I told you here, low pressure should be there. Now J.J. Thomson performed the experiment of discharge tube, जिसमें उसने अप्लाई किया था लो प्रेशर, जो कि था 10⁻² mm to 10⁻³ mm की रेंज में. So quite a low pressure was applied in the discharge tube. Remember, it's nothing but known as discharge tube. Okay, so the low pressure is applied in this discharge tube. You can see for there is a vacuum pump. Vacuum pump creates the vacuum inside this discharge tube. याचं काम काय असतं की मध्ये व्हॅक्यूम प्रोड्यूस करत असतं ते. सो व्हॅक्यूम क्रिएट करायचा या ट्यूब मध्ये, दॅट इज द मेन फंक्शन ऑफ द व्हॅक्यूम पंप. तो गॅसेस, certain gas we filled there, and then yes, this pressure at 10⁻² mm to 10⁻³ mm was the range of the pressure. It's a very low pressure actually, and the high voltage पता है कितना है? Near about 5,000 volt to 10,000 volt. This much high voltage was applied at the two ends of this discharge tube. Now you know that this is the negative terminal and this is positive terminal. इसको हम बोलेंगे कैथोड, इसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे एनोड. ओके, तो इसमें देखिए वो जो ट्यूब था इसका नाम था डिस्चार्ज ट्यूब. उस ट्यूब में जे थॉमसन ने गैस फिल किया और उसके ऊपर अप्लाई किया लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज. प्रेशर आई टोल्ड यू, वोल्टेज आई टोल्ड यू, एंड देन एट द सेम टाइम he applied, he used the two surfaces. One is known as cathode, जो कि यहाँ पे नेगेटिव है, और other here is anode, जो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है. And this nothing but the vacuum pump. यहाँ पे ये जो कनेक्शन इधर दिख रहा है, ये कहाँ जाएगा? It will go to the vacuum pump. Okay. Now, when these conditions were applied, then he saw that certain invisible rays, they were coming from the surface of cathode. अभी देखिए ये जो रेस आपको दिखाई दे रहे हैं, they are going towards anode and they are emerging from the surface of cathode. That's why these rays were given the name as cathode rays, because their path, you can see, is nothing but perpendicular at the surface of cathode. Now they are going towards anode. लेकिन कैसे समझ में आया? How to detect them? Actually ये जो होते हैं cathode rays, they can affect the photographic plate.
and they also produce fluorescence. The substances like zinc sulfide, then barium platinocyanide, like such a kind of substances, they are known as fluorescent substances. इनके ऊपर अगर ऐसे रेज को बोmbard किया जाए, then they are showing a shining appearance. This property is known as fluorescence. Okay, so ठीक इस तरफ आप देख सकते हो यहाँ पे there is a glowing glass wall. You can see यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे ग्लास वॉल है और ठीक बिल्कुल कैथोड के सामने जो ग्लास वॉल दिख रहा है, जो भी दिख रहा है वो सरफेस ये ग्लो करने लगा because of the cathode rays. So obviously in this way cathode rays were discovered. As they are going towards the anode and they are emerging to the cathode, their names were given as cathode rays. So in this way discovery of the cathode rays it took place. Later on it is proved that कि अगर ऐसे बहुत सारे गैस अगर हमने लिए, so they have same charge to mass ratio. So later on these rays are nothing but known as electrons. He also studied some properties of cathode rays. जैसे कि cathode rays, they have their path in the straight line, perpendicular at the surface of the cathode. Cathode rays, they have their path in the straight line. So cathode rays passes in straight lines, perpendicular at the surface of cathode. Second thing, yes, they अगर देखा जाए कि कैथोड रेज के बीच मतलब उनके पाथ उनका जो होता है पाथ जहां से वो गुजरते हैं, अगर वहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा जाए तो उसके ऊपर वो क्या करते हैं पता है, दे आल्सो अप्लाई द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट्स present in the time. So here they apply the force on the objects present in their path. Then cathode rays produces ionization of gases. So they produce ionization of gases. Imagine, suppose there are certain gases और उन गैसेस में से अगर आउटर इलेक्ट्रॉन को थ्रो किया जाए, मतलब उसको निकाल के बाहर किया जाए, तो क्या हो जाएगा? देखिए किसी भी एटम के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम होंगे, लेकिन अगर सोचिए इनके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को निकाला जाए तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दे विल बी इलेक्ट्रॉन्स दे विल बी सेम. तो ऐसे में क्या हो जाएगा? देयर इज सर्टेन चार्ज, दैट इज नथिंग बट पॉजिटिव चार्ज. सो इन दिस वे दे कैन प्रोड्यूस द आयोनाइजेशन ऑफ द गैसेस. देन ऑन स्ट्राइकिंग at the metal surface, the metal surface can become red and glows. और एक बात, when these cathode rays they are suddenly stopped by an obstacle, मतलब अगर इनके बीच में मेटालिक आता है ऑब्जेक्ट, तो ऐसे में क्या होगा?
there is a formation of X-rays. So when cathode rays are suddenly stopped by an obstacle, मतलब कोई भी चीज जो उसके पाथ के अंदर आ जाएगी, ठीक है, इट नोन एज ऑब्स्टैकल, देन स्पेशली मेटालिक ऑब्जेक्ट्स, ओके, मेटालिक, so then X-rays are produced. Then cathode rays, they can produce the fluorescence. I told you this property also. So these are some general property. Actually we should know about the discovery of electrons. This is the time we have lots of time, so everything we have to understand properly in the deep. ओके, मैं चाहूंगा कि आप लोग डायग्राम भी निकाल लो प्रॉपर तरीके से और इन पॉइंट्स को भी आप लिख सकते हो, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच वाज डन बाय द जे थॉमसन। ओके, नाउ लेट्स सी द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। Then the next term. Now let's see here how the protons were discovered. But let me tell you, you know that आपको पता है कि electrons are present in the different shells as well as subshells. Protons are present in the nucleus of an atom. ये आपने पढ़ा होगा। तो पहले न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई। Nucleus was first discovered by the scientist Rutherford, and then at the same time protons were discovered. अब इसके लिए यहाँ पे हमारे बुक में दिया है कि Rutherford discovered the proton, but in the old syllabus textbook of 11th science it is given that scientist Goldstein discovered protons. Whatever, देखते हैं हम यहाँ पे कि how the nucleus was discovered. For that, Rutherford performed one of the experiment, जो कि है Rutherford's scattering experiment. Now I look at this. क्या कहते हैं उसने? Rutherford performed this experiment in I think 1911. Yes. He performed the experiment of the scattering. Actually, he taken the source of alpha particle. Now you know that alpha particle, beta particle, gamma particles. Okay, just please, the sound is disturbing. Let's wait for some time. Let's continue. ये ऐसे चलता रहता है दिन भर, कोई ना कोई आता रहता है यहाँ पे, ये ले लो वो ले लो, you know, so it's okay, whatever. Now as I told you, this is nothing but the source of alpha particle. Source of अल्फा पार्टिकल मतलब यहां पे कोई ना कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होगा। रेडियो एक्टिव इन द सेंस दे ऑलवेज emit अल्फा, बीटा एंड गामा टाइप ऑफ रेडिएशंस स्पॉन्टेनियस, नेचुरली। तो ऐसे एलिमेंट्स जो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है 82 से ज्यादा, ऐसे जितने भी होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर, मैंने क्या कहा, ज्यादा होगा 82 से,
ऐसे जो एलिमेंट्स है दे शो दिस प्रॉपर्टी ऑफ इमिटिंग रेडिएशंस अल्फा, बीटा एंड गामा। तो ऐसा ही यहाँ पे उन्होंने एक सोर्स मतलब दिया होगा और उसके लिए यहाँ पे ये रखा है लेड ब्लॉक, क्योंकि lead has property to absorb the radiations. So only one hole is there, and that all that radiations they could pass only in one direction. तो ये है सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल और यहाँ पे फिर ये है लेड प्लेट। इस लेड प्लेट को वापस यहाँ पे एक होल बनाया ताकि क्या हो पता है, एक ही डायरेक्शन में ये अल्फा पार्टिकल जो है ये यहां पे ट्रैवल करे। और आप यहां पे देख सकते हो ये है लेड प्लेट और ये है अल्फा पार्टिकल एंड दिस इज नथिंग बट द गोल्ड फॉइल। पर्पसली आई विल शो इट विद द अदर थिंग सो दैट यू अंडरस्टैंड। तो ये है वो गोल्ड फॉइल, ये दिख रहे हैं आपको इधर। यस, सो रुदरफोर्ड एक्चुअली ही बम्बार्ड मतलब क्या, उस पर अटैक करने का। मीन्स टू अटैक। सो ही बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल ऑन द गोल्ड फॉइल, थीन गोल्ड फॉइल, एंड देन एट द सेम टाइम he used this photography plate। दिखाई दे रहा है ना, ये है वो photography plate। As I told you, this kind of a substance says they produces fluorescence, that's why he taken the photography plate। So in this way, in this manner he performed the experiment। आपके टेक्स्ट बुक में बहुत छोटा दिया है वो टॉपिक, आपको जानना होगा डिटेल में कैसे उसने किया। So when he did this experiment, he finds certain things, he observes certain things, जिसमें से नंबर एक था क्या, his observation, I will write here observations। Number one, most of the alpha particles pass straight without any deviation। Most of the alpha particles, I will say near about 99% ऐसे पार्टिकल थे अल्फा पार्टिकल जो पास हुए गोल्ड फॉइल से डिविएट ना होते हुए सीधा गए 99% without any deviation। Then few alpha particle were deviated through small angles। मतलब वो अगर इस तरीके से आए तो यहां पे थोड़ा डेविएट हुए, स्ट्रेट जा रहे थे पहले और फिर वो थोड़ा सा मुड़ गए तो हो गए डेविएट, इट्स अ स्लाइट डेविएशन। लेकिन अगर ऐसे आ रहे हैं, दिस इज द डायरेक्शन हियर, अगर ये ऐसे आ रहे हैं तो ऐसे गए, इट्स लार्ज डेविएशन। सो few particles were deviated through the small angles। तो ये इस तरीके से आए होंगे और फिर डेविएट हुए स्मॉल एंगल से। अभी इसके अलग अलग बुक में कुछ दिया है, कहां पे मतलब नंबर अलग अलग दिया है, तो हम यहाँ पे बस इतना ही करेंगे, फ्यू कहेंगे बस। देन वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स deviated through large angles। जैसे मैंने आपको कहा वो ऐसे आए फिर ऐसे, यू कैन सी इन द डायग्राम। कैसे मालूम चलेगा ये कहां पे गए, तो जहां पे ये स्ट्राइक होंगे तो यहां पे प्रोड्यूस हुआ है ये ऐसा ग्लो,
जिसको आपके बुक में दिया गया है नाम सिंटिलेशन। तो यहां पे क्या हुआ, वो जाती वहां पे उन्होंने ग्लो प्रोड्यूस किया। सो इस तरीके से। एंड देन द लास्ट पॉइंट आई विल से हियर ऑब्जर्वेशन था, वेरी वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, कितना, you can say just 1 out of 10,000 approximately. Only one alpha particle, it was completely deviated back at an angle of 180 degrees. तो कितना, just one alpha particle out of 10,000 alpha particle was deviated back at an angle of 180 डिग्री। मतलब देखिए वो जैसे आया होगा, अगर ऐसे आया और फिर ऐसे ही चला गया, मतलब जिस तरीके से आया ठीक उसी रास्ते से वापस चला गया 180 के एंगल में। ये थे उसके कुछ ऑब्जर्वेशंस। अभी इन ऑब्जर्वेशंस ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशंस ही आल्सो मेड सम कंक्लूजन्स। क्या है, हम यहां पे बोलते देखते हैं, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट विदाउट डेविएशन। तो इसी से उसने बताया कि शायद ऐसा इसीलिए हुआ होगा क्योंकि एटम का जो साइड, मतलब जो अंदर का पार्ट है, इट मस्ट बी हॉलो पोर्शन, हॉलो म्हणजे पोकळ। सो मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम मस्ट बी एम्प्टी। मोस्ट of space in an atom must be empty। empty मतलब hollow। बहुत सी जगह जो है एटम के अंदर वाली ये क्या होगी, hollow होगी। ठीक। few alpha particle deviate through small angle and very few deviate through large angles। इसका रीजन उसने ये बताया, अल्फा पार्टिकल का नेचर होता है पॉजिटिव, और जब वो किसी चीज से टकराए होंगे जो कि पॉजिटिव है तो वहां पे जरूर रिपल्शन हुआ होगा। और देखो, when the positive will get strike on the positive, there will be repulsion, and that's why it get deviated through small angle or large angle। तो यहां पे इसने यही कहा कि अल्फा पार्टिकल एटम के अंदर में किस ऐसी चीज, मतलब चीज के ऊपर स्ट्राइक होगी जो कि होगी यस पॉजिटिवली चार्ज। उस चार्ज को, मतलब वो चीज को जो कि थी पॉजिटिवली चार्ज, उसने नाम दिया न्यूक्लियस। सो इन दिस वे न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड। Now, in the last point, you can see very few alpha particle deviated back at an angle of 180 degrees। 180 के डिग्री से जैसे गया वो अल्फा पार्टिकल, उसको स्ट्राइक होके गोल्ड फॉइल से, मतलब वो एक जगह पर डायरेक्टली पीछे गया। इससे उसने ये अनुमान लगाया, द न्यूक्लियस must be rigid and the size of nucleus is very small। so this is nothing but the रुदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो इस तरीके से न्यूक्लियस का डिस्कवरी उसने किया। ये डिस्कवरी करने के बाद उसने और एक चीज बताई, एक्चुअली ही परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट ऑफ आर्टिफिशियल ट्रांसपोर्टेशन। सो ही परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट ऑफ आर्टिफिशियल ट्रांसपोर्टेशन। टेक माय पेन। इन 1919 देखिए, ये उसने किया था 1911 में, अब ये उसने किया था 1919 में।
जहां पर नाइट्रोजन का ये आइसोटोप जो है नाइट्रोजन 7 एटॉमिक नंबर और मास नंबर है उसका 14, इसके ऊपर उसने अल्फा पार्टिकल का बोम्बार्डमेंट किया। अल्फा पार्टिकल जानते हो क्या होते हैं? वो होते हैं हेलियम न्यूक्लियाई। न्यूक्लियस एक स्तर, सिंगल न्यूक्लियस, सिंगुलर, न्यूक्लियाई मेनी न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियाई, यस आया समझ में? तो उसने यहां पे नाइट्रोजन का ये जो है आइसोटोप जिसका एटॉमिक नंबर है 7, एटॉमिक मास नंबर है 14, इसके ऊपर उसने अल्फा पार्टिकल को बोम्बार्ड किया और उसे मालूम चला एक बात, यहां पे एक नया पार्टिकल होता है फॉर्म। नाउ यू कैन सी 7 + 2 is 9, तो यहां पे एक चला गया। अभी यहां पे जो भी होगा जिसका एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए 8, ऐसा कौन है? इट्स नथिंग बट ऑक्सीजन। एंड हियर 14 + 4 is 18, इसमें से एक गया तो क्या बचेगा 70। नाउ दिस एक्सपेरिमेंट, I mean this reaction, they are so known as artificial transmutation। अभी ये जो है इट्स अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री टॉपिक, जो हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में इन चैप्टर नंबर 13। ओके, क्या बनना होगा अपन? फिलहाल उसने नाइट्रोजन के एटम के ऊपर अल्फा पार्टिकल को किया बोम्बार्ड, तो उसे मालूम चला, उसे क्या मिला? उसने देखा कि देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन एटम एट द सेम टाइम दिस पार्टिकल it was emerged, and this particle is nothing but proton। This is nothing but proton। Later on he performed many such a kind of experiments of artificial transmutation, जिसमें उसको ये पता चला कि हाइड्रोजन न्यूक्लियर is present in almost all the type of elements, and in this way the discovery of proton it took place। Understand? इसके बारे में ये जो टर्म है, देखिए रेडियो एक्टिव क्या होती है पता है आपको? रेडियो एक्टिविटी इट्स अ फिनोमिनॉन ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस। मैंने बताया आपको कि जिनका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, मोर देन होता है 82, इनके अंदर होती है क्षमता। कौन सी? They constantly emit alpha, beta and gamma particles। I will say alpha and beta particles and gamma rays। तो ये जो होती है it is known as yes natural radioactivity। ये जो होते हैं ऐसे आर्टिफिशियल ट्रांसपोर्टेशन क्या है हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको कहा इन द चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम वापस इसको देखेंगे। फिलहाल आपको अभी मालूम चला होगा, आई थिंक दैट हाउ प्रोटॉन्स were discovered। So almost in every reaction, in every atom, protons are present। Okay, understand? Now electrons are lighter, light elevated, they are here above 1837 times lighter than the protons। So protons are heavier than the electrons। ठीक है, इस तरीके से अभी आप इसको डाउन कर लीजिएगा। देखिए जैसे हमने यहाँ पे समझा कि कैसी हुई डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की, ठीक हम समझेंगे उसी तरीके से हाउ द न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड। तो उसके लिए टाइम लगेगा, बट वी नीड द लेक्चर ड्यूरेशन लेस देन 45 मिनट्स, ताकि उसको अपलोडिंग में भी टाइम लगता है, आपको पता है। सो मैं चाहूंगा कि आप एक काम कीजिएगा, मतलब तब तक ये लिखने के बाद जो टेबल आपके बुक में दिया है
प्रॉपर्टीज ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल्स वाला, उसे आप लोग आपके ग्रुप में लिख लीजिएगा इसके बाद, ठीक है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड देन द नेक्स्ट टर्म्स। इन केस ऑफ ए डाउट यू कैन टेल, ओके। हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, हमें हर एक चीज को समझना है। आपको अगर कोई डाउट है तो मुझे आप पूछ सकते हो, जस्ट फील फ्री टू आस्क, ओके, ठीक है। सो लेट्स स्टॉप टुडे, गुड बाय।